Good afternoon, students. Last day I discussed the concept of class and object. In today's session, we go through important features of object-oriented programming, which is inheritance. Let me know if you have faced any problem regarding this topic. Okay, so let's start. To inheritance. What is inheritance? The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. Okay, inheritance is one of the most important features of object. Why and when to use inheritance? Okay, so consider a group of vehicles. You need to create classes for bus, car and truck. The methods fuel amount, capacity, apply brakes will be the same for all the three classes. If we create these classes avoiding inheritance, then we have to write all of these functions in each of the three classes. Suppose class bus function apply brakes. Next, class car apply brakes. Next, class truck. Apply brakes. Okay, now you can clearly see that above process result in duplication of same code three times in class bus, class car and class truck. This increase the chances of error and data redundancy. To avoid this type of situation, inheritance is used. Okay, if we create class, vehicles and write these three functions in it and inherit the rest of the classes from the vehicles class, then we can simply avoid the duplication of the data and increase reusability. Okay, that's why we use inheritance. Got it? Now, inheritance, modes of inheritance.
Three types of modes are there in inheritance. First one is public mode. What is public mode? If we derive a public class, if we derive a subclass from a public base class, then the public member of the base class will become public. Okay. In the derived class, and protected members of the base class will become protected in derived class. Last class I discussed about what is object and what is class. In this topic I discuss what is protected, what is public, and what is public. Same things inheritance in this topic. Same thing in this topic. Three modes are there. One is public mode, one is protected mode, and one is private mode. Now, types of inheritance. 4 types of inheritance in C++. First one is single types of inheritance. Single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and fourth one is hierarchical inheritance. Okay, these are the types of inheritance. चलो अब फिर से एक बार देख लेते हैं इनहेरिटेंस क्या है. The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. Inheritance क्या है? The capability of class to derive the properties and characteristics. सपोज ये एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को बताया, और एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ. मतलब कैपेबिलिटी ऑफ क्लास टू डेराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास. मैंने एक क्लास क्रिएट किया. सोचो मैंने एक क्लास क्रिएट किया. सोचो एक ग्रैंडफादर है आपका, ठीक है, एक ग्रैंडफादर है. ग्रैंडफादर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज किसको मिलेगा? आपके पापा को मिलेगा. इसके बाद आपके अंकल को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर डेराइव क्लास कौन सा है? ग्रैंडफादर. एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम
अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास को जब इनहेरिट किया जाता है, मतलब एक क्लास के प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स को जो इनहेरिट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में दो टाइप्स के क्लास होते हैं। एक होता है बेस क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं सब क्लास, एंड अनदर इज सुपर क्लास, जिसको हम बोलते हैं जिसको सुपर क्लास को हम बोलते हैं बेस क्लास, और डेरिवेटिव क्लास को बोलते हैं हम लोग सब क्लास। तो द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड द सब क्लास। और सुपर क्लास क्या है? द क्लास where properties are inherited by subclass is called base class। तो ये रहा बेस क्लास, डिराइव क्लास। मतलब बेस क्लास का प्रॉपर्टीज डिराइव क्लास क्या करेगा? बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। तो सपोज यहाँ पर कौन सा है? बेस क्लास कौन सा है? आपका ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर का कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन इनहेरिट करेगा? आपके पापा करेंगे, आपके अंकल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पापा लोग तीन भाई होते हैं, तो आपका ग्रैंडफादर के कैरेक्टर्स, उनको प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज उन लोगों को मिलेगा। तो वही जैसे एनआरसी में होते हैं, मतलब ट्री मेथड से उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, और जो लास्ट में रहेगा, मतलब फर्स्ट में जो रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस क्लास। ओके, तो इनहेरिटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस, next one is multiple inheritance, third one is multi-level inheritance, fourth one is hierarchical inheritance, and fifth one is hybrid inheritance। ओके, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या समझाया, पता नहीं किसको समझ में आया या नहीं। फिर से समझा देता हूँ। सोचो मैंने 3 क्लास क्रिएट किया है, क्लास बास, क्लास कार एंड क्लास ट्रक। ठीक है, तीनों में मैंने मेथड सेम इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने बेस क्लास क्या ले लिया? क्लास बास लिया है, क्लास कार लिया, और 3 क्लासेस मैंने लिया है यहाँ पर ट्रक। जो मैंने मेथड अप्लाई किया है वो सेम है। फ्यूल, अमाउंट, कैपेसिटी, फंक्शन, जो मैंने फंक्शन लिया है वो तीनों में सेम है। तब क्या हो जाएगा? कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। उसी डुप्लीकेट मतलब रिडंडेंसी, उससे को डाटा रिडंडेंसी। अगर डाटा रिडंडेंसी को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया? वो है इनहेरिटेंस यूज़ किया। ठीक है, इनहेरिटेंस में 3 टाइप्स के मोड होते हैं, पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड और प्राइवेट मोड। और आप लोगों को पता है पब्लिक मोड क्या है और प्रोटेक्टेड मोड क्या है, और प्राइवेट मोड मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ऑब्जेक्ट और क्लासेस में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? In single inheritance, a class is allowed to inherit from only one class, that is one subclass inherited by one base class। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है?
In single inheritance, a class is allowed to inherit from only one class, that is one subclass is inherited by one base class. समझ गए? एक ही सब क्लास रहेगा और एक ही बेस क्लास लगेगा, ओनली वन. मतलब सोचो, इस वाला समझे, ग्रैंडफादर और पापा, मतलब ओनली वन क्लास. एक क्लास इन सिंगुलर इज अलाउड ओनली इनहेरिट ऑन फ्रॉम ओनली वन क्लास. ओके, अच्छी तरह समझो सिंगल इनहेरिटेंस, ये नोट करके रखना. इन सिंगल इनहेरिटेंस ये समझो क्लास ए का प्रॉपर्टी सिर्फ कौन इनहेरिट कर रहा है? क्लास बी इनहेरिट कर सकता है. सिंगुलर एक बेस क्लास, इसको हम बोलेंगे बेस क्लास, इसको हम बोलेंगे डेराइव्ड क्लास. सिंपल थिंग, मिल गया हम लोगों को सिंगल इनहेरिटेंस क्या है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. एग्जाम में आता है, याद रखना. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास, दो डेराइव क्लास होता है. मतलब ये सोचो, क्लास ए मेरा बेस क्लास है और दो डेराइव क्लास रहेगा. एक डेराइव समझो क्लास बी और एक समझो क्लास सी. मतलब एक बेस क्लास और दो डेराइव क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. और एक बात, डेराइव क्लास का भी और एक डेराइव क्लास रह सकता है. डेराइव का भी डेराइव क्लास होता है, इसका भी एक क्लास हो सकता है. ये डेराइव क्लास का भी और एक डेराइव क्लास होगा. सोचो, इसको क्लास एज दे दिया नाम. तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है? एक बेस क्लास, दो डेराइव क्लास, और डेराइव क्लास का भी डेराइव क्लास होता है. ठीक है, ये रहा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इसका प्रोग्राम मैं दिखाऊंगा बाद में. अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ के रखो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या है. सिंपल, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो. इन सिंगल इनहेरिटेंस वन बेस क्लास and one derived class. In multi-level inheritance, one base class and two derived class, which is called multi-level inheritance. Next one is, next क्या है? Multiple inheritance. मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा बेस क्लास होता है, हो सकते हैं, होता है हो सकते हैं, और एक डेराइव क्लास होता है. ठीक है, एक से ज़्यादा बेस क्लास हो सकता है.
ये डायग्राम के साथ में आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए, और अगर इस तरह आप लोग दोगे तो आंसर सही है। आपको सिर्फ ड्रॉ करके देना है और सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। तो मल्टीपल का डेफिनेशन क्या है? इन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? इन मल्टीपल इनहेरिटेंस मोर देन inherit from more than one classes, that is one subclass is inherited from more than one base class। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बेस क्लास से एक डेराइव क्लास इनहेरिट कर सकता है। मतलब 2-3 बेस क्लास होता है और डेराइव क्लास एक होता है, मतलब एक डेराइव क्लास 2-3 बेस क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, ये बेस क्लास, सपोज ये समझ लो बेस क्लास 1, बेस क्लास 2, बेस क्लास 3। ठीक है, और ये क्या है? डेराइव्ड। देखो 3 बेस क्लास है, 3 बेस क्लास का प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है एक डेराइव्ड क्लास, इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। नंबर 4 इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? मोर देन वन सब क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास, दैट इज मोर देन वन डेराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। सिंपल है, एक बेस क्लास होगा और बहुत सारे इसका डेराइव क्लास होगा, और कुछ नहीं है। सिंटेक्स में दिखा दूंगा आप लोगों का डायग्राम ड्रॉ करके। उल्टा है, इसमें क्या है कि मल्टीपल में क्या था? बेस क्लास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डेराइव क्लास, बेस क्लास एक से भी ज़्यादा हो सकता है, डेराइव क्लास एक ही, उसका एक डेराइव क्लास बेस क्लास बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा बेस क्लास से प्रॉपर्टी जनरेट। इसमें क्या होगा? बेस क्लास एक रहेगा और डेराइव क्लास, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के टाइप भी बोल सकते हो आप, डेराइव क्लास। ठीक है, जो लास्ट है वो क्या है? हाइब्रिड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है? आप लोग बुक देखना, बुक में सब कुछ है, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक से ज़्यादा, उसको बोल सकते हो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। सब कुछ हाइब्रिड मतलब क्या है? सब मिला, मिक्सिंग अप, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्की, सब कुछ मिलके एक इनहेरिटेंस, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस इनहेरिटेंस जो हम लोगों को टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब सब, ये नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मतलब सब इनहेरिटेंस को मिक्सअप, मतलब मिक्स है। हाइब्रिड मतलब क्या है? मिक्स है, सब चीज़ों का मिक्स है। तो उसमें
उसको वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, इसका डायग्राम सिंपल है, क्लास बी एंड क्लास सी। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी इसको डिराइव करते हैं, इसको बोलते हैं क्लास सी। कोई भी एक बेस क्लास को उसका प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है। जैसे सिंपल है हाइब्रिड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर तुम लोगों को 5 टाइप्स ऑफ 5 लिखना है, बस उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। सिंपल 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस से ज़्यादातर यूज़ होता है। और फर्स्ट वाला क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट है आप लोग एब्स्ट्रैक्शन समझेंगे। ये अच्छी तरह से वीडियो देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कॉल करो। थैंक यू।